ایک سچی دکھ بھری کہانی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک سچی دکھ بھری کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ فہد میرا چچا زاد تھا۔ اس کی منگنی میری بہن سائرہ سے ہو چکی تھی، مگر نوکری نہ ملی تو شادی ملتوی کرنی پڑی۔ ظاہر ہے بیوی کی ذمہ داری کے لیے برسرے روزگار ہونا ضروری تھا۔ والد صاحب نے چچا سے کہا کہ فہد کو شہر بھیج دو، وہاں قسمت آزمائی کرے گا تو روزگار مل جائے گا۔ بڑے شہروں میں ملازمت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، جہاں ملیں اور فیکٹریاں ہوتی ہیں۔ اسپتال اور پلازے، کالج، سکول، یونیورسٹیاں، کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ روزگار ضرور مل جائے گا۔ فہد نے BA پاس کر لیا تھا، اس امید پر کہ اپنے علاقے میں بوائے اسکول میں استاد لگ جائے گا۔ بہت کوشش کی، مگر اپنے گاؤں میں تو کیا آس پاس کے دیہاتوں میں بھی کہیں نوکری نہ ملی۔ جب روزگار کے مسئلے نے سر اٹھایا تو چچا جان کو اپنا ایک پرانا پڑوسی جان عالم یاد آ گیا، جسے سب گاؤں میں جانو پکارتے تھے۔ وہ کافی عرصہ قبل روزگار کے سلسلے میں کراچی چلا گیا تھا، پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ چچا جان نے جانو کو خط لکھا کہ فہد نے BA پاس کر لیا ہے، اب ملازمت کے لیے پریشان ہے، کراچی آنا چاہتا ہے، مگر اس شہر میں تمہارے سوا کوئی دوسرا بندہ شناسا یا واقف کار نہیں ہے۔ اگر تم فہد کی کچھ مدد کر سکو تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ جان عالم اچھا آدمی تھا، اس کی گاؤں والے تعریف کرتے تھے کہ مہمان نواز اور بااخلاق ہے۔ کوئی اگر اپنے گاؤں والا اس کے پاس چلا جائے تو وہ نہ صرف خاطر تواضع کرتا ہے بلکہ رہنے کو جگہ بھی دے دیتا ہے۔ حسب توقع خط ملتے ہی اس نے جواب ارسال کر دیا۔ لکھا تھا، چچا جان آپ فکر مت کیجیے، فہد میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے، اسے فوراً کراچی روانہ کر دیجیے۔ کوچ نمبر اور وقت بتا دیجیے، میں خود اڈے پر جا کر اسے اپنے ٹھکانے پر لے آؤں گا اور جو کچھ بن پڑا نوکری کے سلسلے میں ضرور کروں گا۔ فہد کے دل میں بھی ہر نوجوان کی طرح گھر بسانے کا ارمان کروٹیں لیتا تھا۔ اس نے ابا جان کی شرط مان کر بڑی محنت سے BA پاس کر لیا تھا اور ملازمت کے لیے بھی کافی تگ و دو کر چکا تھا، مگر سرکاری نوکری کا حصول آسان نہ تھا۔ مجبوراً وہ کراچی جانے پر آمادہ ہو گیا۔ وہ جاتے وقت کافی اداس تھا، کیونکہ وہ سائرہ سے اتنی دور نہیں جانا چاہتا تھا، تاہم یہ جدائی بھی سائرہ کی خاطر برداشت کرنا تھی۔ کراچی پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس وسیع و عریض شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے بسوں کے اخراجات برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ تبھی دفتری بابو بننے کا ارادہ ترک کر دیا اور جانو کے مشورے پر ایک مل میں معمولی کام پر لگ گیا، تاکہ فوری طور پر تو معاشی مسئلہ حل ہو۔ جانو کا ٹھکانہ شہر سے کافی دور ایک کچی آبادی میں تھا۔ یہ گھر کیا تھا، سیمنٹ کے بلاکوں کی چار دیواری پر سیمنٹ ہی کی چادروں کی بنی چھت ڈالی گئی تھی۔ بغیر پلستر کی چار دیواری میں چھوٹا سا صحن تھا، جس میں 3 لوہے کی چھوٹی چارپائیاں پڑ سکتی تھی۔ جانو نے بھائی فہد سے کہا کہ تمہیں کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رہو، تم میرے گاؤں کے ہو اور میں بھی اس بھرے شہر میں اکیلا ہوں، تم ساتھ رہو تو اچھا رہے گا، البتہ جب نوکری مل جائے تو کرائے میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیا کرنا۔ فہد بھائی بھی یہی چاہتے تھے کہ اس بھرے شہر میں کوئی ایک تو اپنا شناسا ہو، ورنہ بالکل تنہا اجنبیوں میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے چچا زاد بھائی کو مل میں نوکری مل گئی۔ معمولی تنخواہ کی وجہ سے جانو نے پہلے 3 ماہ کرائے کی مد میں ایک پائی نہ لی۔ فہد چونکہ محنتی اور دیانتدار نوجوان تھا، اس کے باس نے پرکھ لیا کہ بندہ کام کا ہے اور BA پاس بھی کر چکا ہے۔ جب کلرک کی آسامی خالی ہوئی تو ڈگری کام آ گئی اور اسے کلرک رکھ دیا گیا۔ اب تنخواہ پہلے سے بہتر تھی۔ تبھی کرائے کی مد میں بھائی بھی حصہ ڈالنے لگا۔ جب کچھ واقفیت ہو گئی اور اچھی نوکری مل گئی تو فہد آدھی تنخواہ گھر بھجوانے لگا، مگر 1 سال میں ایک بار بھی وہ گاؤں نہ آ سکا۔ تب والدین کے دل میں خدشات سر اٹھانے لگے۔ چچا جان نے بیٹے کو خط لکھا، چھٹی لے کر جلد آ جاؤ،
क्योंकि तुम्हारी शादी भी करनी है। फहद खुद भी यही चाहता था। जब साल भर के बाद बोनस मिला तो रख्ते सफ़र बांधा और घर आ गया। चचा जान ने झटपट शादी की तारीख रख दी। मेरे वालिदैन भी यही चाहते थे कि जल्द अज जल्द सायरा के फ़र्ज से सबकदोश हो जाएं। छुट्टी 10 रोज़ की थी। आनन फानन शादी हो गई और 10 रोज़ पलक झपकते गुजर गए तो फहद भाई ने वापस जाने की तैयारी पकड़ ली। इनका जी तो ना चाहता था कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर शहर चले जाएं, लेकिन मजबूरी थी। अगर एक बार नौकरी छूट जाती तो दोबारा ऐसी मुलाजमत का हसूल मुश्किल था। कराची जाते ही फहद भाई को वालदा के खतूत मिलने लगे कि सायरा तेरे लिए बहुत उदास है, इसको भी अपने पास बुलवा लो, वो तुम्हारे पास आना चाहती है। वो इस बात का क्या जवाब देते? खुद सायरा के लिए वो खुद उदास थे, मगर मजबूरी थी कि जानू के ठिकाने पर सर तो छुपा रखा था। बीवी साथ हो तो दोस्त के घर रहना बहुत मुश्किल होता है, अलहदा कर लेना ज़रूरी था। पहले वालदा ख़त लिखती रही, फिर सायरा ने ख़त लिखवाना शुरू कर दिए कि खुद गांव आ जाओ या मुझे बुलवा लो, गांव में मजदूरी कर लेना, मगर मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो मुझसे छोटी थी और ख़त भी मुझसे लिखवाती थी। फहद भाई शहर वाली नौकरी किसी हाल में छोड़ना ना चाहते थे और सायरा के मुतालबे को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार वो नई नवेली दुल्हन थी। इसका भी दिल चाहता था कि वो अपने शोहर के साथ रहे। फहद 2 दिन की छुट्टी लेकर गांव आया। सायरा इसे देखकर निहाल हो गई और साथ चलने की जिद पकड़ ली। मजबूरन मेरा बिनोई बीवी को लेकर कराची आ गया। कराची पहुंचते ही फहद ने जानू से कहा, दोस्त अब मेरे लिए अलहदा मकान का बंदोबस्त कर दो, आपकी भाभी 2-4 दिन आपकी मेहमान रहेगी। जानू ने फौरन भाग दौड़ कर एक क्वार्टर हासिल कर लिया और 1 माह के किराए की एडवांस रकम भी अपनी जेब से अदा कर दी ताकि ये परेशानी भी फौरी तौर पर हल हो जाए। क्वार्टर तो अच्छा मिल गया था, मगर जानू के ठिकाने से ज़रा दूरी पर था। बज़ाहिर इर्द गिर्द ठीक लोग रहते थे, ताहम बड़े शहरों में ऐसी आबादियों में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अतराफ में जो चंद घराने आबाद थे वो शरीफ लोग थे जो बाल बच्चेदार थे। कुछ मामूली मुलाजमत पेशा थे और 2-4 दुकानदार थे जिनकी किराने की दुकानें थीं। जब पड़ोस की औरतों ने आना जाना शुरू कर दिया तो फहद को तसल्ली हो गई। पड़ोसी मर्दों से भी सलाम दुआ हो गई थी। सायरा के पास मोहल्ले की 2 बच्चियां सिपारा पढ़ने आने लगीं क्योंकि वो अकेली होती थी। इसने हमसाया औरत से कहा था कि अपनी बच्चियों को मेरे पास भेजा करें, मैं इन्हें सिपारा पढ़ा दिया करूंगी। नए मकान में रहते 6 माह गुजर गए, किसी किस्म की परेशानी ना हुई तो फहद ने शुक्र अदा किया। जानू की मेहरबानी से वो एक बड़ी परेशानी से बच गया था। अगर वो ना होता तो मकान की तलाश में ना जाने कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता। एक रोज़ जबकि फहद हस्बे मामूल नौकरी पर गया हुआ था, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पड़ोसी की 7 साला बच्ची जो कायदा पढ़ने आई हुई थी। इसने जाकर दरवाजे पर पूछा, कौन है? दस्तक देने वाले ने कहा कि मैं फहद का फलां रिश्तेदार हूँ और गांव से आया हूँ। इसने अपना नाम इनाम बताया जो हमारे एक अजीज़ के बेटे का नाम था। सायरा इनाम के नाम से वाकिफ थी और जानती थी कि वो रिश्तेदार भी है, लेकिन पर्दा करती थी, लिहाजा इसने इनाम को कभी देखा ना था और ना कभी बात की थी। ताहम परदेस में रिश्तेदारी निभाने की वजह से इसने बच्ची से कहा कि इस आदमी को कहो फहद घर पर नहीं है, वो नौकरी पर गया हुआ है, शाम 5 बजे के बाद आ जाना। बच्ची जिसका नाम कौसर था, इसने आने वाले को पैगाम दे दिया। तब वो बोला कि बाजी सायरा से कहो मेरा बैग रख लें और मैं रात भर का सफ़र बस से कर आ रहा हूँ और पानी पिला दें। तब सायरा को यकीन हो गया कि ये चचा कादिर का लड़का इनाम ही है जो इसका नाम भी जानता है। वो बोली, कौसर तुम इसे बैठक में बिठा दो और सामने की दुकान से एक ठंडी बोतल लाकर इसे दे दो। फहद के आने में थोड़ी सी देर है, ये अब कहाँ जाएगा? ऐसा ना हो कि मेरा शोहर नाराज़ हो जाए कि तुमने गांव के रिश्तेदार से चले जाने का क्यों कहा, जबकि वो दूर से आया था। मेहमान से बदसलूकी ठीक नहीं।
बच्ची ने बैठक वाले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और इस शख्स को बैठने को कहा। वो भागकर गई, दुकान से ठंडे मशरूब की बोतल लाकर इसे दे दी। ज़रा देर बाद बच्ची अपने घर चली गई, जबकि सायरा किचन में मसरूफ़ हो गई। इसने कोसर से कहा, तुम अब कल आना, मैं खाना बना लूँ। मेरे शोहर के आने का वक्त हो गया है और मुझे खाना बनाना है क्योंकि मेहमान भी आया हुआ है, खाना बनाना ज़रूरी है। फहद जब 2 घंटे बाद घर आया, ये देखकर हैरान रह गया कि क्वार्टर का बैरूनी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। ताहम इसने यही समझा कि कोई बच्ची जो सिपारा पढ़ने आई होगी गलती से बाहर से कुंडी लगा गई है, या फिर मोहल्ले के किसी शरारती बच्चे ने ऐसा किया होगा। अगरचा पहले कभी ऐसा ना हुआ था कि बैरूनी दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी गई हो। सायरा तो कभी कहीं जाती ना थी, जाती भी थी तो ताला लगाकर जाती। कुंडी खोलकर वो घर में दाखिल हुआ, किचन और नाक कमरे में जहां इन दोनों की चारपाइयाँ बिछी थी। सायरा नहीं थी, बल्कि कमरे में फर्श पर पड़ी थी और किसी ने तेज धार आला इसकी गर्दन पर फेर दिया था। वो खून में लथपथ पड़ी थी। फहद की चीखें निकल गईं। वो हरासा बाहर आया और दुकान वाले से पूछा, क्या घर में कोई आया था? मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे पड़ोस की बच्ची आई थी ठंडी बोतल लेने, कह रही थी आपा जी के घर एक मेहमान आया है गांव से, इसलिए बोतल लेने भेजा है। पड़ोस से फहद ने मालूमात ली। बच्ची ने बताया कि आपके गांव से आपका रिश्तेदार इनाम आया था और आपका पूछा था। इसने तमाम बात दोहरा दी। ये भी बताया कि आपा जी ने कहा आप चले जाओ, बाद में आ जाना जब मेरा शोहर आएगा, मगर वो बोला मेरा बैग रख लें, दूर से आया हूँ। पानी भी मांगा तो आपा जी ने मुझे कहा कि इसको बैठक में बिठा दो और दुकान से ठंडी बोतल लाकर दे दो। अभी फहद आने वाले होंगे, मैं तब तक खाना बनाती हूँ। तो इन्होंने मुझे छुट्टी दे दी और मैं घर आ गई। मुझे नहीं मालूम मेहमान बैठा रहा या चला गया। थाने फहद के साथ जाकर पड़ोसियों ने अहवाल बताया। पुलिस आ गई, तहकीक और तफ्तीश भी की, मगर असल आदमी का इल्म ना हो सका कि कौन आया था और सायरा के साथ क्या हुआ। वो आदमी कौन था जिसने दुश्मनी निकाली? इनाम का भी मालूम करने पुलिस गांव आई, इससे बयान लिया। इसे साथ लेकर कराची आए, बच्ची से शिनाख्त करवाई। इसने कहा कि वो ये आदमी नहीं था, वो कोई और था। इनाम के बारे में गांव वालों ने भी गवाही दी कि वाक़े वाले रोज़ और इससे पहले और बाद में इनाम गांव में मौजूद था। ये कहीं नहीं गया, ये कार्रवाई किसी और की है। ये बात साबित हो गई। इनाम का इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं था, वो लाइल्म और बेगुनाह था। ताहम ये मामला हल ना हो सका कि ये जुल्म किस जालिम का है और वो कौन था और ये सब उसने क्यों किया। सायरा इस दुनिया से चली गई। हम रोते रह गए। फहद भी नौकरी छोड़कर गांव वापस आ गया। भला अब वो वहां क्यों कर रह सकता था और किसके लिए रहता? आज इस वाक़े को 40 बरस बीत गए हैं। आज भी जब हम अपनी बहन सायरा को याद करते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। फहद भाई के साथ मेरे तीसरे नंबर वाली छोटी बहन की शादी करके अब्बा जान और चचा जान ने इसका घर दोबारा आबाद कर दिया, लेकिन हम जब तक जिएंगे अपनी बहन का ये गम ना भुला सकेंगे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। नाज़रीन, ये एक सच्ची कहानी है जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।